ellipse. Now we have already seen standard form of the ellipse. ठीक है, standard form of the ellipse. It is given by this formula: x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. Now center of this ellipse is at origin. यहाँ पर जो मैंने निकाला है, depending upon value of a and b, we get two types of ellipse: either horizontal ellipse in which a is greater than b, or we get a vertical ellipse in which b is greater than a, or you can say a is less than b. ठीक है, तो दो टाइप के ellipse हमें मिलते हैं. फार्मूला एक ही है, फार्मूला अलग नहीं है. फार्मूला एक ही है, स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ए ग्रेटर देन बी होगा तो हॉरिजॉन्टल, ए लेस देन बी होगा तो वर्टिकल. अकॉर्डिंगली उनके फोकस, उनके डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, उनके वर्टाइसेस, उनकी इसेंट्रिसिटी, सब चीजें चेंज हो जाती है. एंड फॉर दैट वी आर ऑलरेडी हैविंग डिफरेंट फार्मूले. हमने स्टडी किया है अलग अलग चीजों के लिए, दोनों भी ellipse के केस में. अब हम देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एन ellipse. ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ एन ellipse मतलब अगर सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर शिफ्ट हो गया, मतलब ओरिजिन इज शिफ्टेड. सेंटर शिफ्ट हुआ मतलब ओरिजिन शिफ्ट हुआ. तो इन दिस केस लेट अस से फोकस यस is at h comma k, then directrix d ax plus by plus c equal to 0, eccentricity e is equal to under root 1 minus b square upon a square. ठीक, so whatever we are discussing about this ellipse in which a is greater than b. ठीक है, सारी चीजें हम उसी के लिए डिस्कस कर रहे हैं. तो इसेंट्रिसिटी का भी फार्मूला वही से आया, 1 under root 1 minus b square upon a square. Now in case of a ellipse we know that eccentricity is always less than 1. ठीक है, so it is between 0 and 1. Now p x y be any point on ellipse. ठीक है, let it be any point on the ellipse. और अगर मुझे जनरल इक्वेशन निकालना है किसी भी इलिप्स का जिसका मुझे फोकस मालूम है एच के, डायरेक्ट्रिक्स मालूम है ax plus by plus c equal to 0, then we can find out general equation using this technique. What is the relation between sp and pm? Sp is equal to e into pm. It means sp square is equal to e square into pm square. Now what is sp square? It is the distance between s and p. ठीक है, तो यहाँ पर यस है, पॉइंट पी हमने ले लिया जनरल पॉइंट. तो डिस्टेंस एस पी एक्स माइनस ई एच ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, सो दिस इज एस पी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एस एंड पी इज इक्वल टू ई स्क्वायर एज इट इज, एंड पी एम स्क्वायर. नाउ पी एम स्क्वायर इज डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन. तो उसका फार्मूला आ जाता है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. लेकिन हमने यहाँ पर pm स्क्वायर लिखा है तो मॉड तो रिमूव हो जाएगा, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट था उसका स्क्वायर हो गया. सो यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन फाइंड आउट जनरल इक्वेशन ऑफ एनी इलिप्स. फोकस मालूम होना चाहिए आपको, डायरेक्ट्रिक्स मालूम होना चाहिए. आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. ये हमारे लिए जाना पहचाना इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन इन सेकंड डिग्री. ax square 2h xy by square 2gx 2fyc equal to 0. So we have already seen this type of general equation in second degree represents a ellipse if delta is not equal to 0. Now delta is a determinant जिसके के डायगोनल पर ABC है, अपर ट्रायंगल में HGF, इधर भी HGF. ठीक है, so it should not be equal to 0 and h square minus AB is less than 0. Then this equation represents an ellipse. Now one most important property of ellipse is that
SP is equal to S dash P and it is always constant. So distance of any point on the ellipse, distance of any point on the ellipse from the two focus, दो फोकस होते हैं S और S dash, distance of any point on the ellipse from two focus S and S dash is always equal and it is constant and it is equal to major axis. 2a मतलब क्या होता है? Major axis. This is A, this is A, so this complete 2a is major axis. So we say that distance of a point on the ellipse from both the focus is always equal and it is equal to a constant. Now, अब ये किस तरीके से होगा? देखिए छोटे छोटे चीजें होती है, यहाँ पर होगा यस, इधर होगा यस। आप इसके ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, so this distance and this distance, ठीक है, both the distances are equal. सॉरी, हमने ये अलग तरीके से लिखा, यहाँ पर मैं अलग तरीके से लिखा। So this is point P. It is not equal. It should be here plus होना चाहिए। SP plus A dash P is equal to constant, which is equal to 2A. अब ये जो point है P, whenever it will move on this ellipse, कहीं पर भी होगा ये point, ठीक है, ये point कहीं पर भी होगा, तो SP plus S dash P is always equal to twice major axis, ठीक है। अब देखिए अगर इधर आ जाता है point, तो S dash P कम हो जाएगा, लेकिन आपका SP बढ़ जाएगा, ठीक है। S dash P कम हो गया लेकिन SP बढ़ गया। अल्टीमेटली दोनों की जो सम है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, इक्वल टू, अगर दोनों की सम जो होती है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू 2a. सो दैट इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर ओरिजिन पर होता है, ठीक है, दिस इज द सेंटर, ये सेंटर है। अगर सेंटर आपका ओरिजिन से शिफ्ट हो गया, कौन से पॉइंट पर? एच के पर, ठीक है, तो सेंटर इज एट एच के, इट मींस ओरिजिन इज शिफ्टेड, देन वी विल यूज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन फार्मूली एंड वी विल गेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स एज एक्स स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा एक्स माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 1। सो दिस इज क्वाइट इजी, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करना है बस। अगर किसी कर्व का इक्वेशन, ठीक है, इफ इक्वेशन ऑफ कर्व इज Lx plus My plus n ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस Mx minus Ly plus p ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर is equal to 1. So this is the equation of a curve where this first line, that is Lx plus My plus n equal to 0 and Mx minus Ly plus p equal to 0 are perpendicular. ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर होगी तो अब इस बात को समझिए। देखिए यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखा है, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इधर वाई स्क्वायर है। नाउ एक्स एंड वाई आर व्हाट? दे आर एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, और दोनों भी एक दूसरे को कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इफ एक्सेस रिमेनिंग पैरेलल बट एक्सेस अभी शिफ्ट हो गया, एक्सेस शिफ्ट हो गए बट दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ओनली इट इज एन इलिप्स। इलिप्स के केस में यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इधर वाई स्क्वायर है, मतलब एक्स और वाई दे आर परपेंडिकुलर एक्सेस। सिमिलरली हियर दीज टू लाइंस शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तभी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इलिप्स के फॉर्म में, क्योंकि तभी वो इलिप्स होगा। अब ये जो दो लाइंस है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कैसे? इन दोनों का आप स्लोप देखिए, इस लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, इस पहली वाली लाइन का स्लोप क्या आएगा? क्या फार्मूला होता है? अगर लाइन हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी होगी, लाइन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, स्लोप होता है माइनस बी अपॉन ए। इस लाइन का स्लोप है माइनस बी मतलब एम अपॉन एल,
पहली लाइन का स्लोप। दूसरी लाइन का स्लोप क्या है देखिए, mx माइनस एल वाई प्लस पी, सो इट इज माइनस बी अपॉन ए, बी मतलब माइनस यल अपॉन ए मतलब यम, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये कट हो गया। अब ये दोनों स्लोप आप देखिए, दिस इज यल अपॉन यम और इसका निगेटिव रेसिप्रोकल, इसका निगेटिव रेसिप्रोकल माइनस यम अपॉन यल। So these two lines are perpendicular to each other. So these two lines act as axis of the ellipse. जैसे यहाँ पर है x और y, ये तो एक्सिस हो गए, तो ऐसे यहाँ पर ये पहला एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस, ठीक है। सो दिस बिकम्स अ इलिप्स। नाउ इन दिस केस अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें सब्स्टिट्यूशन करना होता है। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो अगर हमें इस इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना होगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, ये जो लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, इसको हम एक्स बोलेंगे, ठीक है। सो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, देन इट इज कैपिटल एक्स। सेकंड लाइन को y बोलेंगे, एम एक्स माइनस एल वाई प्लस पी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब क्या है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, सो इट इज y। Then it gets converted into x square upon a square, y square upon b square equal to 1, which is the standard form of the ellipse. But obviously this ellipse is not on x axis and y axis. ये कहाँ पर होगा, ये लाइन काम करेगी एज ए x axis, ये लाइन काम करेगी एज ए y axis, ठीक है। ये दोनों केस है। अब नेक्स्ट थिंग, position of a point with respect to ellipse. Position of a point with respect to ellipse मतलब आपको एक इलिप्स दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि वो पॉइंट इलिप्स के ऊपर है या फिर इलिप्स के अंदर है या फिर इलिप्स के बाहर है। अब इसके लिए जो हमने टेक्निक पैराबोला में यूज की वही टेक्निक यहाँ पर भी यूज होगी, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी कर्व। जैसे पैराबोला आपका इलिप्स कौन सा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस इलिप्स को हमने बोल दिया यस। यस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा -1 व्हिच इज इक्वल टू 0। तो ये माना जाता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दैट इज यस। अब जो भी पॉइंट हमें चेक करना है, लेट दैट पॉइंट बी x1 y1, ठीक है। वो पॉइंट क्या होगा, x1 y1। सो वी विल रिप्लेस x बाय x1, विल रिप्लेस y बाय y1, देन वी विल गेट s1। यहाँ पर हमें s1 मिलेगा। अगर s1 इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब इलिप्स का इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, इसका मतलब कि पॉइंट इज ऑन द इलिप्स। अगर s1 इक्वल टू 0 आता है तो इलिप्स का इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, मतलब पॉइंट कहां पर है, इलिप्स पर है। अगर s1 लेस देन 0 आया तो पॉइंट इज इनसाइड द इलिप्स, अगर s1 ग्रेटर देन 0 आया तो पॉइंट इज आउटसाइड द इलिप्स, ठीक। ये तीन चीजें हमने देखी। अब नंबर ऑफ टेंजेंट्स यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर पॉइंट इलिप्स के ऊपर होगा, ठीक है, पॉइंट अगर इलिप्स के ऊपर होगा सो देयर इज ओनली वन टेंजेंट। अगर पॉइंट इलिप्स के बाहर होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर फिगर है, पॉइंट इलिप्स के ऊपर होगा तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट। पॉइंट अगर इलिप्स के बाहर होगा तो देयर आर टू रियल टेंजेंट्स, ठीक है। यहाँ पर एक हो गई, इधर से दूसरी हो गई, टू रियल टेंजेंट्स। और अगर पॉइंट इनसाइड द इलिप्स होगा सो देन आल्सो देयर आर टू टेंजेंट्स, बट दिस टू टेंजेंट्स आर इमेजिनरी, मतलब यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। सो यू गेट टू imaginary tangents in case of a point inside the ellipse, ठीक है। अगर पॉइंट कहीं पर भी इलिप्स के अंदर हुआ तो ऑब्वियसली वहां से तो टेंजेंट निकलेगी नहीं, टेंजेंट निकलेगी नहीं मतलब रियल टेंजेंट नहीं होगी, वहां से आपकी इमेजिनरी टेंजेंट होगी, ठीक। सो दिस इज अवर टेंजेंट
for different points on the ellipse, inside the ellipse, outside the ellipse. अब आगे बढ़ते हैं. Auxiliary circle. Now in case of any conic section we get two types of circle. एक होता है auxiliary circle, एक होता है director circle. We have already discussed this, हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें रिपीट करनी पड़ेगी अपने को बार बार. Because for different conics we are having different concepts of this. Auxiliary circle. तो auxiliary circle is what? Auxiliary circle में अगर आप जो भी मेजर एक्सिस है उसे अगर हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, टेकिंग द मेजर एक्सिस एज डायमीटर वी आर ड्रॉइंग अ सर्कल, देन इट इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ दैट इलिप्स. मेजर एक्सिस को हमें डायमीटर करना होता है, ठीक है. यहाँ पर ब्लू कलर से जो दिखा है इट इज अ इलिप्स. ये इलिप्स है, इसका मेजर एक्सिस हो गया यहाँ पर 2a स्टैंडर्ड इलिप्स, a ग्रेटर देन b वाले केस में. तो ये मेजर एक्सिस हुआ. Now taking this major axis as diameter, we are drawing a circle. Then this circle is called as auxiliary circle. तो obviously इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x square plus y square equal to a square. क्योंकि इस पर्टिकुलर सर्कल की डायमीटर हो जाएगी a. यहाँ पर जो है this much distance is a. So that is the diameter of the circle, radius of the circle. So you get x square plus y square equal to a square. That is auxiliary circle of for this ellipse. ठीक, अगर वर्टिकल होता था, वर्टिकल इलिप्स होगा तो उस केस में ऑक्सिलरी सर्कल क्या हो जाएगा? फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा. सेकंड थिंग, इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट. अब ये वाला कंसेप्ट बहुत समझना जरूरी है. इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट. मान लीजिए दिस इज पॉइंट पी, ठीक है. इस पॉइंट P का मुझे इसेंट्रिक एंगल निकालना है. इस पॉइंट P का हमें इसेंट्रिक एंगल निकालना है. देन द इसेंट्रिक एंगल इज गिवन बाय और इट इज फाइंड आउट यूजिंग दिस टेक्निक. जो P है उस पॉइंट P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे एक्सिस पर. फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लेट अस से m, ठीक है. और O और P को ज्वाइन करके आपको इसेंट्रिक एंगल नहीं मिलेगा. ध्यान रखिए, एंगल XOP इज नॉट इसेंट्रिक एंगल. XOP यहाँ पे ज्वाइन करके आपको इसेंट्रिक एंगल नहीं मिलेगा. तो इसेंट्रिक एंगल कौन सा होगा? फिर ये जो MP है विल एक्सटेंड दिस MP टू मीट द ऑक्सिलरी सर्कल इन पॉइंट Q. ठीक है, पॉइंट P का हमें चाहिए इसेंट्रिक एंगल. इलिप्स के ऊपर का पॉइंट है P, इसका चाहिए इसेंट्रिक एंगल. देन जो ये पॉइंट P है उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्सिस पर, PM हो गया. अब हमने MP को एक्सटेंड कर दिया सो दैट इट मीट्स द ऑक्सिलरी सर्कल इन पॉइंट Q. और फिर जब आप OQ ज्वाइन करोगे then this particular angle theta is eccentric angle of this point P. क्लियर है? क्योंकि इलिप्स के केस, सर्कल के केस में तो इट्स क्वाइट इजी. सर्कल जो होता है आपका, सर्कल में हमने देखा है इस सर्कल का ऑक्सिलरी सर्कल कौन सा होगा? सेम सर्कल होगा. इस सर्कल का ऑक्सिलरी सर्कल सेम सर्कल होगा. तो यही सर्कल होगा. तो जब हमें इसका इसेंट्रिक एंगल चाहिए होता है तो हम सीधा इसे ज्वाइन कर देते हैं. दिस इज इसेंट्रिक एंगल. बट सिंस दिस इज एन इलिप्स, हमें इसका ऑक्सिलरी सर्कल निकालना होगा. फिर हम इस O और Q को ज्वाइन करेंगे. देन इट इज कॉल्ड एज इसेंट्रिक एंगल. तो यहाँ पर एंगल XOQ जो है इट इज इसेंट्रिक एंगल थीटा एंड XOP इज नॉट इसेंट्रिक एंगल. तो अब अगर थीटा आपको मालूम होगा तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ ellipse, obviously theta lies between 0 and 2 pi. 0 less than or equal to theta less than 2 pi. तो हमने इधर ही इक्वल टू लिखा है. 0 से स्टार्ट होता है तो 2 pi के पहले ही खत्म होगा, बिकॉज 2 pi and 0 both are equal. तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं? x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta. These are the parametric equations for ellipse. Equation of chord of contact at P x1 y1. Equation of chord of contact at P x1 y1.
सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, इट इज नथिंग बट T इज इक्वल टू 0. सो वेन T इज नथिंग बट टेंजेंट, T इज नथिंग बट टेंजेंट. जो इक्वेशन टेंजेंट का होता है उसी तरीके से आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है, ध्यान में रखिए. यहाँ पर मैंने सर्कल निकाला, चलिए इलिप्स निकालता हूँ. ये इलिप्स हो गया, ठीक है. अब इस इलिप्स को कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1. अब इस P से इलिप्स को कितने टेंजेंट निकलेंगे, 2 टेंजेंट निकलेंगे, ठीक है. एक मैंने निकाल लिया, ये वाला मान लीजिए. दूसरा हो गया, इधर 2 टेंजेंट हो गए. अब ये जो दोनों पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है, दोनों पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, देन वी गेट अ लाइन which is nothing but chord of the ellipse. But this particular chord is called as chord of contact of point P, x1, y1, and it can be found out using this formula: x1 upon a square plus y1 upon b square equal to 1, which is nothing but equation of tangent itself. ठीक. अब ये तो कार्टेशियन फॉर्म में था. हमें अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में चाहिए तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इन पैरामीट्रिक फॉर्म. ये 2 अलग अलग पॉइंट है, पॉइंट θ1, पॉइंट θ2. पॉइंट θ1 मतलब a cos θ1, b sin θ1. पॉइंट θ2 मतलब a cos θ2, b sin θ2. इस फार्मूला से, ठीक है. फॉर डिफरेंट इसेंट्रिक एंगल्स θ1 एंड θ2 we get 2 different points on the ellipse. और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आपको चाहिए. सो इट कैन बी गिवन बाय दिस फार्मूला: x upon a cos of θ1 plus θ2 upon 2 plus y upon b sin of θ1 plus θ2 upon 2 equal to cos of θ1 minus θ2 upon 2. This is the formula for chord of contact in case of parametric points. अब यहाँ पर एक चीज ध्यान, ठीक. पैरामीट्रिक फार्मूला थोड़ा सा इक्वेशन लग रहा है कि सर बहुत बड़ा फार्मूला हो गया, बट देयर इज अनदर टेक्निक. इसको हम अलग तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं, अलग तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. देखिए ये जो दोनों पॉइंट है, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. ठीक. अब हम इस पॉइंट की बात नहीं कर रहे, अब हम पैरामीट्रिक फॉर्म में 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है. ये पॉइंट एक है, ये दूसरा पॉइंट है, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हुआ. ठीक. ये जो पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है. पहला जो पॉइंट P है, इसके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, Q का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट. तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. इसका अगर xy कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, इसका xy कोऑर्डिनेट मालूम है, so by using the formula 2 point form of a line, 2 point form of a line, y minus y1 upon y1 minus y2 equal to x minus x1 upon x1 minus x2. तो अगर यहाँ पर 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 है कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये तो वही कार्टेशियन फॉर्म में ही हुआ. ये पैरामीट्रिक में है, बट जब आपको एंगल मालूम होगा, मान लीजिए cos थीटा जो है, थीटा अगर आपका 30 डिग्री होगा, तो cos 30 डिग्री वैल्यू डाल के आप इसे x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ पर भी x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर आपको इक्वेशन मिल सकता है. सो दैट इज क्वाइट लेंथी मेथड, बट इट इज देयर. ठीक है. उसी तरीके से ये प्रूव हुआ है बेसिकली. तो ये आपका हो गया कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स P एंड Q. नाउ अब यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, पूछ लीजिए, तो फिर हम टेंजेंट की तरफ बढ़ेंगे. सारे पॉइंट्स कॉमन आएंगे पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में. ठीक. तो हम चेक कर सकते हैं कि वेदर द गिवन लाइन इज अ टेंजेंट टू द इलिप्स और नॉट यूजिंग दिस कंडीशन. वी ऑलरेडी स्टडीड दिस कंडीशन. ठीक है. तो लाइन टचेस इन 1 पॉइंट, मतलब कि टेंजेंट होगी
अगर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. It means it is a tangent line. Means touching in only one point. If c square is less than a square m square plus b square, then it is a second line touching in two different points. Third case, it does not meet ellipse if c square is greater than a square m square plus b square. Third case, अगर c square की वैल्यू ग्रेटर देन हुई ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो इसका मतलब कि जो लाइन है इट विल नॉट मीट इलिप्स. ये तीन केसेस है एंड दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. फ्रॉम दिस वी गेट वैल्यू ऑफ सी. यहां पर रखते हैं हम वैल्यू ऑफ सी. नेक्स्ट थिंग, अगर लाइन टेंजेंट होगी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है आपका, इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला. लाइन अगर टेंजेंट होगी तो, नहीं होगी तो फिर सवाल ही नहीं है. अगर लाइन टेंजेंट होगी देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन बाय प्लस और माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा माइनस और प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन केस ऑफ ए टेंजेंट लाइन. ये लाइन और ये इलिप्स अगर एक दूसरे को टेंजेंट, ये लाइन अगर टेंजेंट है इलिप्स को, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा. नाउ लेट अस स्टडी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड इलिप्स, दैट इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. अब इस इलिप्स में लाइन जो होगा टेंजेंट है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करते हैं? यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. If the line is in this form y is equal to mx plus c, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है हमारे लिए? यही जो हमने पढ़ा, बोर्ड में भी पढ़ा, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो दैट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. फॉर दिस लाइन टू बी अ टेंजेंट टू दिस इलिप्स. ठीक. सेकंड थिंग, अब कभी कभी क्या होता है ना, जो टेंजेंट लाइन है इट इज गिवन इन डिफरेंट फॉर्म. ये तो कौन सा फॉर्म हुआ? This is known as slope intercept form. Y is equal to mx plus c. ये कौन सा फॉर्म हुआ? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो इस केस में हम यहां से चेक कर सकते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. अगर लाइन आपको जनरल फॉर्म में दिया होगा, जनरल फॉर्म कौन सा होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. मतलब लाइन अभी है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0. Now, अगर ये लाइन मुझे चेक करना है whether it is a tangent or not, then we can use this condition. n square equal to a square l square plus b square m square. थर्ड केस, अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है नॉर्मल फॉर्म में, दिस इज नॉर्मल फॉर्म, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. लाइन इस तरीके से आपको गिवन है. In that case, to check condition is p square equal to a square cos square alpha plus b square sin square alpha. So this is the condition of tangency in case of different lines. This line is in slope point form or slope intercept form. This is in general form, and this is in normal form. Audio off. ओके. सो लेट अस से मला जी लाईन चेक करायची आहे की टँजंट आहे किंवा नाही. काम काय आपलं? चेक करणे, टँजंट आहे किंवा नाही. मला या फॉर्मॅट मध्ये असेल तर ते चेक करता येतं. हा फॉर्म्युला माहिती आहे. समजा या फॉर्मॅट मध्ये लाईन असेल, या फॉर्मॅट मध्ये म्हणजे जनरल फॉर्म मध्ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, म्हणजे असं असेल. ठीक आहे. ही लाईन आपल्याला चेक करायची. म्हणजे आता अर्थ, मला जर हा फॉर्म्युला वापरायचा असेल सेकंड, तर l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 असं घेऊन या ठिकाणी आपल्याला चेक करावं लागेल. क्लिअर? पण मग हा फॉर्म्युला लक्षात नसेल तर मग आपण काय करू शकतो? ही जी लाईन आहे हिलाच मी कन्वर्ट करून घेतो y इज इक्वल टू mx प्लस c मध्ये. y इज इक्वल टू mx प्लस c मध्ये या लाईनला आपण कन्वर्ट करू शकतो. कसं? हा आहे या ठिकाणी 3y
इज इक्वल टू 2x तिकडे गेला झाला -2x, 4 तिकडे गेला झाला -4. आता 3 ने थ्रू आउट डिवाइड करणार. y इज इक्वल टू -2/3 x -4/3. सिंपल. आता लाईन कुठल्या फॉर्म मध्ये झाली? y इज इक्वल टू mx प्लस c च्या. मला काय व्हॅल्यू लागतात? m आणि c. हा जो आहे दिस इज m and this is c. Now we can use this well-known formula to check whether this particular line is a tangent to the given ellipse or not. m ची व्हॅल्यू होणार -2/3 आणि c ची व्हॅल्यू होणार -4/3. आणि याच्याने आपण चेक करू शकतो. सेम थिंग हिअर ऑल्सो. या ठिकाणी सुद्धा आपण तसं करू शकतो. ठीक आहे. ओके. So this is for condition of tangency. Next thing. Director circle. Now as discussed, we are having two different circles for conics. ठीक है. एक तो हमने देखा ये तो ऑक्सिलरी सर्कल. ऑक्सिलरी सर्कल में क्या होता है? मेजर एक्सिस becomes the diameter of the circle. So you get x square plus y square equal to a square as auxiliary circle. एक होता है डायरेक्टर सर्कल. नाउ डायरेक्टर सर्कल इज नथिंग बट लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स. लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज कॉल्ड एज डायरेक्टर सर्कल. पैराबोला में भी यही था. ठीक है. हर कोनिक्स में यही होता है. जैसे यहाँ पर ये इलिप्स है, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट. एक ऐसे मान लीजिए एक टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट ऐसे. ये हो गए दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स. अब ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका एक सर्कल बनेगा. तो उस सर्कल के ऊपर का मतलब कि डायरेक्टर सर्कल के ऊपर का जो भी पॉइंट होगा वहां से अगर आप इलिप्स को टेंजेंट निकालते हो सो यू विल गेट टू परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑलवेज. और इनका जो सर्कल बनेगा दैट इज कॉल्ड एज ए डायरेक्टर सर्कल. और उसका इक्वेशन होता है x square plus y square equal to a square plus b square. So obviously this is also a standard circle जिसका कि सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ a square plus b square will be the radius. Now combined equation of pair of tangents. हमने देखा है कि कोई भी अगर एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो उस एक्सटर्नल पॉइंट से इलिप्स के लिए हम दो टेंजेंट निकाल सकते हैं. पहला टेंजेंट है, दूसरा टेंजेंट. ठीक है. लेट दिस एक्सटर्नल पॉइंट बी x1 y1. तो हमने दो टेंजेंट निकाल लिए. अब इसका कंबाइंड इक्वेशन अगर आपको चाहिए, कंबाइंड इक्वेशन, देन इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला. s1 इक्वल टू t स्क्वायर. s1 इक्वल टू t स्क्वायर. Where s is what? S is the given ellipse. x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 होता है ना. 1 को हम इधर लेकर आ गए तो हो गया -1. So that is yes. S1 मतलब you have to replace x by x1. You have to replace y by y1. तो ये हो गया S1. And t मतलब टेंजेंट. टेंजेंट हमें कैसे मिलता है? एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं x इंटू x1 से, वाई स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं y इंटू y1 से. ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो यस s1 इज इक्वल टू t स्क्वायर जब आप करेंगे यू विल गेट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स. ठीक. नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है. नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. जैसे अगर ये वाला आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पर टेंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल. अब कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी क्या है? जैसे हमने यहाँ पर चेक किया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. दिस इज अ लाइन which is tangent to this ellipse if c square equal to. ठीक है. सो दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. अगर मान लीजिए सेम कोई भी एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, एक लाइन है और हमें चेक करना है वेदर इट इज नॉर्मल टू द इलिप्स और नॉट.
देन कंडीशन है हमारा सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाता है कंडीशन फॉर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं वेदर द गिवन लाइन इज नॉर्मल और नॉट। सेकंड, अगर लाइन जनरल फॉर्म में होगा मतलब एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, तो कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी हो जाती है ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। सो दैट इज द फार्मूला फॉर कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी इन केस ऑफ ए जनरल लाइन। ये जनरल लाइन हुआ। अब यहाँ पर भी जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना कि इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, और ये कंडीशन यूज करूंगा। तो इधर भी ऐसे आप कर सकते हैं, इस लाइन को कन्वर्ट कर लीजिए आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, फिर ये वाले कंडीशन से आप चेक कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, डायमीटर ऑफ इलिप्स। ठीक है, डायमीटर ऑफ इलिप्स, जैसे सर्कल का डायमीटर होता है वैसे इलिप्स का भी डायमीटर हो सकता है, एंड इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला y is equal to minus b square upon a square m into x. Y is equal to minus b square upon a square m into x. So it is in the form of y is equal to mx plus c नहीं है यहाँ पर. So this diameter always passes through the origin. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करता हूँ तो डायमीटर मतलब क्या होता है? डायमीटर इज नथिंग बट a line passing through the center of the ellipse. So this is the diameter. ठीक है, so this is diameter of the ellipse for particular slope. Okay, तो यहाँ तक हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए रिगार्डिंग इलिप्स